Nearly 97 crore people are registered to vote in the forthcoming elections, and 1.85 crore are in the age group of 18 to 19, and this is as per the Election Commission of India. That's the reason we are holding this conclave, which is the Yuva Conclave, and who better to start this conclave than the Union Minister who's supposed to represent the youth and sports affairs, Anurag Thakur. Thank you so much and welcome to this conclave of NDTV. You have been a union minister for several years now. If I may ask you, what is it to work with the Prime Minister? How has your experience been? आपका अनुभव कैसा रहा? I think most of the people out here, they have their bosses. Even Maria, you have a boss. Yes. But let me tell you, my boss, Prime Minister Narendra Modi, is the best. What makes him best? He is the strictest at work, but he is the kindest when it comes to Bhartiyas, when it comes to the citizen of India. Look at the pro-people policies of Prime Minister Modi. He has worked day and night in the last 10 years, committed every single minute of his life towards the nation building and pro-poor policies and taking the country to the next level. And that is why, because of the pro-poor policies, 25 crore poor people have come out of the multi-dimensional poverty line, which others couldn't do in 60 years. Prime Minister Modi delivered that in 10 years. That is how I say my boss is the best. And does your boss give you free time? Because all of you are campaigning on weekends, you're busy every Saturday, Sunday. You don't have a weekend off. Well, if you have a boss who have not taken a single holiday in last 23 years, he is Chief Minister since 2001, then he took over as a Prime Minister in 2014. And you have seen when his mother passed away, even that day, after the funeral, he just took 2 hours at the funeral and he again started working for the country. That is the kind of commitment Prime Minister has today. And that is what inspires people like us to work day and night. I was in Jammu, Udhampur yesterday, just landed straight into your program. After this, we have back-to-back meetings, then another conclave in the evening, then to Jammu and Kashmir, then again to Lucknow. Yeah, so we are grateful आप आए हमारे मंच पर अनुराग जी चर्चा युवाओं का मंच और मैं ना हूं, मना नहीं कर सकता इसीलिए मुझे लगा कि क्योंकि युवाओं का मंच है और आपको आना तो जरूरी था और इनॉग्रल सेशन है तो युवा क्या है आपके लिए युवा का मतलब क्या है वेल युवा मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी है जो सामने दिख रही है इस हॉल में एंटर करते जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आती है युवा का मतलब है इंस्पिरेशन युवा का मतलब है पैशन युवा का मतलब है मोटिवेशन युवा का मतलब है इनोवेशन युवा का मतलब है एम्पावरमेंट युवा का मतलब है डेवलपमेंट युवा का मतलब है कमिटमेंट युवा का मतलब है ग्रोथ और युवा का मतलब जब मैं कमिटमेंट की बात करता हूं तो हमारे देश का युवा इतना कमिटेड है कि 10 साल में देश जो पहले स्टार्टअप में कहीं नहीं था आज युवा की कमिटमेंट के कारण दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया है एंड लेट मी शेयर दिस एग्जांपल विद यू आई एम जम्मू यस्टरडे ड्यूरिंग द इवेंट पोस्ट द इवेंट इवन ड्यूरिंग द इवनिंग इवेंट a lot of youngsters even in Jammu who met me who are working some are working in the field of cyber security some are in the field of aviation to others and many of them they have startups in the field of agriculture to horticulture and some are looking at the space sector you know few years back we couldn't even think about the space sector today when we open it up for the startups we already have more than 1600 startups in the space sector and also have hundreds of startups in the agriculture and agriculture allied services sector. Look at the people who have come forward as a startup with the drone manufacturing. Garuda is one of them. And now they have thousands of drones manufacturing capacity today. That is how they are shaping the future of India. So मेरे लिए युवा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैं आप पत्रकार आपकी और नहीं कह रहा कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एक नेता को देश में उसको 20 सालों से युवा ही कह रहे हैं
लेकिन युवा क्या उम्र के साथ है केवल? मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखता हूं तो चाहे 12,000 फीट की हाइट केदारनाथ पर वो तपस्या कर रहे हों, साधना में बैठे हों, या फिर तेजस जैसे फाइटर जेट को हवा में उड़ा रहे हों, या डीप सी डाइविंग कर रहे हों, या 11 दिन का अनुष्ठान बगैर एक अन्न का दाना ग्रहण किए कर रहे हों, या 9 दिन नवरात्रों के समय भी बगैर कुछ अन्न ग्रहण किए विदेश यात्रा से लेकर स्वदेश में काम कर रहे हो, युवा तो आपकी सोच में है, आपके काम में है। क्योंकि आपने अभी स्टार्टअप्स बताया कि इतने सारे स्टार्टअप्स खुले हैं हिंदुस्तान में, तो ऑपोजिशन को नौकरी क्यों नहीं दिख रही? ऑपोजिशन का सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। अब कुछ लोगों को झूठ बार बार बोलने की आदत है, उनको लगता है यही सच हो जाएगा, सत्य नहीं है। मैं आप सबके उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 12 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरी मोदी सरकार ने दी है, सरकारी नौकरी। अगर आप ईपीएफओ के अकाउंट्स देखेंगे, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं, तो उसमें 6 करोड़ 40 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ई श्रम कार्ड की बात करूं तो 29 करोड़ 29 करोड़ ई श्रम कार्ड मिले हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 93% 93% इनफॉर्मल सेक्टर था, जो अब मोर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कह लीजिए, जो अब और ऑर्गेनाइज्ड होता चला जा रहा है। आप देखिए, कोविड के समय जब दुनिया ये कहती थी भारत का एमएसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं मारिया जी। हमने 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड बैंकों के माध्यम से दिया एमएसएमई को, ताकि लोन लेट वापस कर सकें, किश्त ना दें। फिर हमने उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। लगभग 4 लाख करोड़ रुपया हमने बगैर ब्याज के पैसा दिया, जिसके कारण आज हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री और ताकतवर खड़ी हुई और रोजगार देना शुरू किया। इसके अलावा हमने लगभग 34 करोड़ हमने मुद्रा लोन दिए, बगैर घर बगैर जमीन गिरवी रखे, और उनमें से 65% से ज्यादा देश की महिलाओं को मिले हैं, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो सकें, अपना रोजगार स्वरोजगार कर सकें। ये पहले नहीं था। तो आपको क्या लगता है 34 करोड़ लोगों को ऋण मिला होगा तो क्या वो काम नहीं दिख रहा है? अनुराग जी, ये दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं। जिस युवा की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो बोलते हैं कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, और ये भी उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप लोग डेटा छुपा रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। आप उसको युवा ही मान रही हैं? नहीं, आपने कहा था। मैं इतना कहूंगा, डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे 2013 में जब हम सरकार में आए, 2014 में, उससे पहले अगर आप 1-1.5 साल का भी निकाल के देखेंगे तो कांग्रेस के समय 13% महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट वाज 13%। आज कितना है? 5% और उससे नीचे है। आप एवरेज भी पिछले 5 साल का निकालेंगे तो 6% से कम नजर आएगा। आप पिछले 10 साल का निकालेंगे तो 5%, 5.5% से कम नजर आएगा, जो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है। दुनिया भर के देशों में जहां इन्फ्लेशन होती नहीं थी, यूएस से लेके यूरोप तक, जहां 1% महंगाई दर मुश्किल से होती थी, आज वहां पर 4-4 गुना महंगाई है। लेकिन कोविड के बावजूद भी महंगाई को नियंत्रण में रखा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और हमने यहां पर गरीब को भी साथ में मुफ्त में अनाज 3 साल भी दिया है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर का एम्फेसिस है सेल्फ रिलायंस पर। तो ये क्या आपको लगता है कि एक हिंदुस्तान को अपने एक डेटा की ज़रूरत है? शायद वो जो एक इंडियंस का एटीट्यूड बदल रहा है कि पहले हम सोचते थे कि पहले सरकारी नौकरी हो जाए, अब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आपने जो जम्मू में जिस शख्स से मुलाकात की, वो अब चाहता है कि हम नौकरी देने वाले बने। निश्चित तौर पर ये 17 साल का युवा था जो साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, और मैं उसकी नॉलेज देख के आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि 17 साल के युवा में और एक टियर 2 सिटी में रहने वाले को अगर साइबर सिक्योरिटी पे इतना ज्ञान है, और कुछ लोग जो एविएशन सेक्टर पे एरोनॉटिक्स इंजीनियर बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो एयरबस बोइंग अब अपने प्लांट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लगा रहे हैं, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट से लेके हेलीकॉप्टर अपने बना रहे हैं,
तो हमारे युवा आज बड़े शहरों से नहीं, छोटे शहरों से ज़्यादा स्टार्टअप्स के माध्यम से एक अपना इकोसिस्टम वहाँ पे खड़ा करने वाले हैं, जो बहुत बड़ी ताकत हमारी बनने वाली है। और मारिया जी, मेरी आप विश्वास मान के चलिए, भारत के युवाओं की क्षमता को वर्षों तक लोगों ने रोक के रखा था। अगर आज से 30 साल पहले हमारा स्पेस सेक्टर खोल दिया होता तो आपको गूगल मैप देखने की जरूरत ना पड़ती। इनमें से किसी युवा ने अपने यहां पर गूगल मैप से बड़ी कंपनी भारत में बनाकर खड़ी कर दी होती। मैं आपको छोटा सा उदाहरण कोविड-19 पैंडेमिक का देता हूं। अमेरिका जैसा देश भी चेक लिख के देता रहा अपनी जनता को, वो भी आज तक हार्ड कॉपी आपके कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की देता है। सुंदर पिचई ने मुझे पिछले साल जनवरी में कहा कि मैं आज तक हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट की लेके चलता हूं अपनी वैक्सीन के। जबकि भारत में आरोग्य सेतु ऐप पे आपको पता चला किसको कोविड से इन्फेक्शन है, कोविन ऐप पे आपको आपका कोविड का सर्टिफिकेट मिला जो आपने अपनी वैक्सीन लगाई। आज दुनिया के बहुत कम देश वो कर पाए जो भारत ने किया है, और भारत ने तो वो भी कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। चंद्रयान मिशन की सफलता दिखाती है कि हम चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। ये भारत के बढ़ते कदम हैं। हमने जैसे स्टार्टअप सेक्टर को खोला स्पेस के लिए, विक्रम एस के नाम से आपने सुना होगा, रॉकेट लॉन्च किया। कैसे संभव हो पाया? 108 सैटेलाइट हमने एक साथ लॉन्च करने का काम किया। आज भारत में इतनी संभावनाएं बनी हैं। स्पेस सेक्टर जो हमें लगता था अमेरिका का है, दूसरे रशिया का हो सकता है, बाकी देशों का, आज भविष्य में स्पेस सेक्टर में भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। हमें शायद अपनी इस ताकत का ही आभास नहीं था, लेकिन मोदी जी को युवा पर विश्वास था। मैं जब मंत्री बना तो मुझे और निर्मला जी को बुला के मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, युवाओं को स्टार्टअप में जो भी चुनौतियां आ रही हैं हमें उसको एड्रेस करना है, इनका कंप्लायंस बर्डन कम करना है, हमें स्टार्टअप की ताकत को खड़ा करना है। और आज देखिए, स्टार्टअप्स में भारत एक बड़ी शक्ति बन के उभरा है। And a quick update to all the viewers who are watching us live and also who are in audience that we are taking questions with Honorable Minister. We'll be opening the floor for questions. In fact, there are a lot of people who have already asked questions via our Twitter handle with hashtag NDTV Yuva. तो मैं इससे शुरू करूं या मैं कुछ और सवाल मैं आपसे पूछ लूं? एक सवाल एक पूछ लेते हैं क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं और उनको भी युवा कहा जाता है। तो अभी तो मुख्यमंत्री हंसना मत यार। तो क्या कहा जाए? आप तो सवाल पे उठा रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। देखिए, आज के युवा को एक बात तो समझनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया में दिखता है, आपको उसकी जड़ तक, गहराई तक जाना चाहिए। जिस शख्स की ये बात करते हैं वो दुनिया को भ्रमित करने वाला, गुमराह करने वाला है, उससे बच के रहना। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब राजनीति में वो आए, उससे पहले कहते थे मैं अपनी बेटियों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। कहा था, राजनीति में आए। कहा था मैं कांग्रेस से कभी नहीं हाथ मिलाऊंगा, गले मिलाया, गले लगाया। कहा था मैं कभी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। शीश महल बनाया, 45 करोड़ का घपला उसमें कर लिया। इससे बड़ी बात, एक नहीं 2-2 बड़ी गाड़ियां ली और 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज ऐसी लड़ाई लड़ी है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए जा रहे हैं। जिनका पार्षद भी भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, जिसका विधायक भी जेल में, जिसका सांसद भी जेल में है, जिसका शिक्षा मंत्री भी जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में है। लेकिन अनुराग जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बस ऑपोजिशन लीडर्स को उठाती है और सवाल पूछती है, सीबीआई का वही है, इनकम टैक्स कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर रही है। देखिए, इनकम टैक्स को लेके कानून है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न हर साल फाइल करनी। क्या कांग्रेस इतनी व्यस्त और मस्त रही कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाई? तो क्या करना चाहिए? देश के कानून से ऊपर कांग्रेस को रख दें? क्या कांग्रेस पे कानून लागू नहीं होता है? और दूसरी ओर जो व्यक्ति कहता था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ूंगा, जब उसकी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, पंजाब का उनका स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देता है भ्रष्टाचार के चलते, 2 महीनों के सरकार के बनते उनको इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते। उनका दिल्ली का मंत्री 1.5 साल से जेल में है, मारिया जी, 1.5 साल से।
लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। तो कानून की माने कि अरविंद केजरीवाल की माने? उनका शराब मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री जिसको क्लीन चिट देते थे, मोनीश सिसोदिया, पैसे खाए, कितने महीनों से जेल में है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या देश का कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अलग से बना दिया जाए? हेमंत सोरेन अगर कोई व्यापारी हो, कोई कर्मचारी हो, बीजेपी का नेता हो, किसी दल का नेता हो, नहीं, लेकिन कोई भी एक बीजेपी के नेता या फिर आपके अपने अलायंस के किसी नेता के बारे में बताइए जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो। बहुत सारों के होता है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर होगा ही। और मैं आपको आज स्पष्ट कहना चाहता हूं और आज सबको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई भाजपा का अधिकारी, कोई व्यापारी, कोई नेता, कोई भाजपा के साथ जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी अगर उसने भ्रष्टाचार किया होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए, अब एक सवाल पहले लेकिन अगर हमने किया ही ना हो तो हम किस बात क्या करेंगे भाई? सर, ईडी का 10 साल से देखिए, 10 साल से हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने 10 साल मारिया जी सरकार चलाई। आप मुझे एक आरोप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाओ भ्रष्टाचार का, एक बता दीजिए। चलिए, ऑडियंस सवाल पूछेंगे सर, लेकिन उससे पहले झुमरू, वेयर इज झुमरू? अरुण सर, अरुण हैज 1 million followers on Instagram. Namaste. झुमरी तलैया तो सुना था, लेकिन And he has a complaint that you did not invite him for the Influencers I Award. was pretty bummed, sir. But I have a question. My question is, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आपने किया, बहुत बढ़िया इवेंट था, और ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैंने पोस्ट देखे, बट देन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट दैट यू नो द टाइमिंग ऑफ इट इज जस्ट अहेड ऑफ द इलेक्शंस, और दूसरा, व्हाई does a party like BJP, which is so big, need influencers, creators? Because हम देख रहे हैं वो interviews भी हो रहे हैं influencers के साथ, इस तरह के event भी हो रहे हैं. So first, is it strategic? B, why does a political party, a mainstream political party, need influencers? I have a counter question to you. Do you think the creator should be recognized? 100%. So that is what we did. Okay. So it was to And appreciate them. And if you look at the content what our creators create, it helps up government like ours who have done a lot of work, but to reach out to masses, every nook and corner. I think on one hand, my ministry, information broadcasting, which does a greater role, we have one of the greatest communicators like Mr. Modi, who's got millions of followers on each platform. He does my job much easier to create more awareness. But at the same time, you have a very interesting way of telling people about the policies, programs, and various other options available to the people. Why not to take the advantage of that and create more awareness and let people know here is the policy or the program which could be of your advantage. And is it why that you also create a lot of reels on Instagram to reach out to these young faces? मेरा आपका भी बहुत मेरा अच्छा तो content छोटा सा, मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ थोड़े से ही फॉलोअर्स हैं, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कुछ लोग जुड़ें, देखें, लेकिन हम लोग आपके काम से बहुत कुछ सीखते हैं और मुझे लगता है हर किसी को जीवन में सीखते रहना चाहिए। कोविड ने हमें एक बात तो सिखाई है, आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आपको बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की हो, बट you have to upskill yourself, you have to reskill yourself, and with the latest technologies coming in, with the more use of artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, I think the future will have a lot of challenges but also opportunities to take the advantage of technology. And I think you guys have used it well to reach out to millions and millions of Indians. Hats off to all my influencers, and looking forward for, you know, when I say India should become the content hub of the world, content continent, it doesn't mean only restricted to the films or the short films or documentaries. Content, what you create on Instagram or on other platforms, or maybe on the YouTube, the short videos, actually help to reach
cut across boundaries and reach out to millions of people who live outside India. Would you mind if we create a fun video with you? Later, perhaps, Jumru. Okay, For go the ahead. moment, there are more questions. Let's pass the mic, please, now. Yes. Good afternoon, sir. I am Amrendra from AMT University, Noida, Uttar Pradesh. My question is related to simultaneous elections. Sir, a high-level committee led by former President, Honorable President Ramnath Kovind ji, submitted its report to President Draupadi Murmu regarding implementation of simultaneous elections. But sir, don't you think simultaneous elections will be a huge blow to our to India's popular sovereignty, sir? Not at all. If you look at before 62, we used to have simultaneous elections only. ये तो 1962 के बाद बदला है, मैं ठीक कह रहा हूँ मारे जी। उससे पहले तो लगातार एक साथ चुनाव होते थे। एक समय तो ऐसा है कि जहाँ पे 4 राज्यों के चुनाव अलग हुए तो पंडित नेहरू ने तो वहाँ की सरकारों को बर्खास्त करके तो वापस बात में करवा दिया था। ऐसा ही हुआ था शायद, कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? I'm not too sure about Yes, it. sir. but बता देना पूछ I'll के। go with your version. लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि देश में अगर एक चुनाव पे इतना पैसा खर्च होता है, इतनी एनर्जी लगती है। आप देखिए, बैठिए प्लीज। इस साल कहां कहां चुनाव हुए? राजस्थान में हुआ पिछले साल 3 महीने पहले ही। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और कहां पे हुआ? कहां हुआ? तेलंगाना में हुआ, एक राज्य और में हुआ, मिजोरम में हुआ। 5 राज्यों में चुनाव हुए। अभी हमारे बाद कितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? दिल्ली का होगा, महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा का होगा, 2-3 राज्यों का और होगा। तो अगले 5-6 महीनों के अंदर फिर 5-6 राज्यों के चुनाव हैं। अगर कुछ राज्यों के चुनाव को प्रीपोन कर दिया जाए, कुछ को 3-4 महीने पोस्टपोन कर दिया जाए, तो 10-15 राज्यों के चुनाव तो एक साथ हो सकते हैं। यानी कि आपका सिक्योरिटी से लेके बाकी सारे खर्चे, हजारों करोड़ रुपया देश का बच सकता है। जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में आपके कई महीने कामकाज नहीं हो पाता, आपका वो समय बच सकता है। हमें जो भारत को विकसित भारत अगले 25 सालों में बनाना है, अगर हम ये समय अगले 5 वर्षों के अंदर बचाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारत 2047 का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले ही विकसित भारत बनाने का काम पूरा हो जाएगा। Let's take more questions. Please move the mic. Yes, Hi. please go ahead. Hi, I'm Swati Pai, working as a software engineer and gearing up for my first voting experience. So as a young woman, I'm deeply interested in understanding the government's forthcoming initiatives pertaining women-centric policies, and over the next 5 years, what measures are anticipated to bolster job opportunities and foster gender equality amongst youth? Thank you. I think that's a very good question. On one hand, we see people like Rahul Gandhi who speak about Shakti, that means about women, महिलाएं हो, बच्चे, बेटियां हो या बहनें हो, उनके खिलाफ वो कहते हैं मैं शक्ति के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी योजनाएं ही नारी शक्ति के पक्ष में हैं। एक और नारी शक्ति वंदन बिल वर्षों से पूरा नहीं हुआ था। We have promised and we have fulfilled the promise to provide 33% reservation in the assemblies and in the parliament also. I think to empower women, that is one of the example we have set across. दूसरा, अगर आप देखेंगे देश की राष्ट्रपति, ये हमारी लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। वो एक पिछड़े इलाके से आती हैं, ट्राइबल इलाके से आती हैं, ग्रामीण इलाके से और गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे एक पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचती है। भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। पिछले राष्ट्रपति देखेंगे रामनाथ कोविंद जी, तो एक दलित परिवार से आते थे, कानपुर से, बहुत छोटे से परिवार से, घर भी नहीं था, बहुत छोटा सा घर था, वो देश के राष्ट्रपति बने। एपीजे कलाम साहब अल्पसंख्यक समाज से आते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। आज भी लोग सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में किसी को याद करते हैं, एपीजे कलाम साहब को याद करते हैं। जहां तक महिलाओं की आपने बात कही, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। महिलाओं को 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, यानी कि एलपीजी के सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में दिया। 4 करोड़ पक्के मकान, जिनमें से 3 करोड़ बहनों के नाम पे सीधे पक्के मकान बनाकर दिए, पक्के मकान की छत दी। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। 12 करोड़ शौचालय टॉयलेट्स बनाए, जो इज्जत घर के रूप में उन्होंने काम किया।
60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया, जिसमें 32 करोड़ महिलाएं हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, जिसमें लगभग 40 करोड़ महिलाएं हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना हो या 34 करोड़ मुद्रा योजना लोन में से 65% महिलाओं के लिए हो, ऐसे अनेक काम। डिफेंस फोर्सेस में 10,400 आज भारत की बेटियां हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, भारत की बेटियां हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं। आज अगर मैं दुनिया के वुमेन पायलट्स की बात करूं तो 12.4% दुनिया की वुमेन पायलट्स भारत में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट वुमेन पायलट्स की आज भारत में है। आज आप अंतरिक्ष से लेकर ड्रोन उड़ाने तक देखें तो महिला है, मुझे सवाल पूछने यहां से लेकर वहां तक देखें तो भारत की महिला है। और मैं ये कहूंगा, आज किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाइए, अगर 10 इनाम मिलते हैं तो उसमें से 7 बेटियों को मिलते हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक्स में हमें पहला मेडल जिताने वाली मीराबाई चानू थी तो भारत की बेटी थी, और अगर गोल्ड मेडल भी हमें कॉमनवेल्थ गेम में जिताने वाली थी तो भी भारत की बेटी ही थी। ये सब बेटियां ही करके दे रही हैं। तो मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी तो हमारी सरकार में महिलाओं को सबसे बड़ा स्थान मंत्री बनने का भी मिला है, ये मोदी सरकार में संभव हो पाया है। And as a political journalist, I would like to also add that इस बार जो आपने टिकट्स दिए हैं 405 से ऊपर जो रिलीज हुए हैं, उसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है women आज तक का सबसे ज्यादा वही है। candidates। और कल भी संदेश खली की विक्टिम से जिनको हमने टिकट दिया, देश के प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात की और उनकी शक्ति की बात की। यही फर्क है, चाहे भारत की बेटी ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में खेलने जा रही हो, तब भी उसका मनोबल प्रधानमंत्री बढ़ाते हैं, या फिर संदेश खली में उस गली गली में बलात्कारी और अत्याचारियों के खिलाफ लड़े तो उससे बात करने में भी पीछे नहीं हटते। ये शक्ति ये भारत की है जिसको आज रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा, हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने अपनी पार्टी में 25% रिजर्वेशन आज से कई साल पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इकोसिस्टम में, जो हमारे प्रतिनिधि, जो हमारी बॉडी बनती है, उसमें दे दिया था। और हमारे राज्यों में 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में हमने आज से कई साल पहले, भाजपा की सरकार ने पहले ही दे दिया है। Okay, more questions please. And we'll take more questions from women. So please go ahead. Another Hello, girl. sir. I'm Saina Mehra from Modern School, Barakhamba Road, studying in class 12th. And my question to you is, what measures is the government taking to empower and educate the 18-year-olds about their voting rights and responsibilities? I think it's a very good question, especially for the 18 years old, because this time you are going to elect the 18th Lok Sabha. So it's very, very special. First time voter, which Maria ji said, 1.8 crore new voters. That also is like 18, 1.8 crore is 18. And the 18 plus voters will elect the 18th Lok Sabha. And first time voter के लिए मेरा इतना ही कहना है, मेरा पहला वोट देश के लिए. So cast your first vote for the country, for the growth of the country, and pledge to make your country a Viksit Bharat. And let us be part of this journey for the next 25 years to make our country a developed India in the next 25 years. A people's contribution can make the people's movement. जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बनता है. और मैं तो कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है. तो दिशा आपका पहला वोट ही दे देगा. और ये दिशा मुझे पता है युवाओं के मन में कौन बसता है. Yes, please. बस सो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे और मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन सही है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे थे ऑपोजिशन गलत है, कल या परसों ही ILO की रिपोर्ट निकली है जहां वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो एजुकेटेड यूथ हैं उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है फ्रॉम 35.2% इन 2000 टू 65.7% इन 2022. एक तो मैं आपकी विचार इस पे जानना चाहूँगा और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम काफ़ी सालों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे बहुत गर्व ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो सब बायस्ड हैं. तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक UN के इंडेक्स को हम क्यों बोलते हैं सही है और दूसरों को क्यों बोलते हैं गलत है. और आपने इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स की बात की जो जेल में हैं,
कृपया आप मुझे ये प्लीज़ बताइए कि उन सब में से ट्रायल कितने का हुआ है और जेल विदाउट ट्रायल कितने हैं? थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल है आपके, बहुत अच्छे सवाल। मैं धन्यवाद दूं कि आपने सवाल पूछे, और इन्हीं सवालों से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का पता चलता है कि आप देश के सूचना प्रसारण मंत्री को बेझिझक होकर नेशनल टीवी पर, जो आपका देश और दुनिया में देखा जाता है, बेझिझक होकर आप सवाल पूछ सकते हो। यही दिखाता है, ये आप शायद पाकिस्तान में ना पूछ पाएंगे, या बाकी दुनिया के देशों में, सऊदी अरेबिया में ना पूछ पाएं, या अन्य देशों में ना पूछ पाएं, आप यहां पूछ पा रहे हैं, और मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। देखिए, हम आज भी गुलामी की मानसिकता के साथ चल रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वर्षों तक हम लोग दुनिया की रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ही निर्भर करते रहे। हमारे अपने आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। मैंने ईपीएफओ का आंकड़ा दिया, आपने उसके ऊपर 6.4 करोड़ का मैंने जो आपको जो आंकड़ा दिया, विच इज अबाउट 64 मिलियन पीपल हैव रजिस्टर्ड ऑन द ईपीएफओ। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. If you look at the total population of Australia, New Zealand, many other countries, it is much bigger number than that. It speaks volume. If I have to talk about 200 million e-Shram cards, it is much larger than the whole of European Union. It is much larger than the America and South America. I think हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपने देश की संस्थाओं पर और विश्वास करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि कुछ लोग जेल के अंदर है, कितने ट्रायल में हैं। अब मैं आपको, एक निर्भया कांड हुआ था, कब हुआ आपको याद है? 16 दिसंबर 2012 को यही हुआ था। कितने साल बाद फांसी हुई? फास्ट ट्रैक कोर्ट था, कितने साल लगे? हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, और आप किसी को प्रॉपर ट्रायल के बिना किसी को हैंग कर दो, वो भी उचित नहीं, उसका भी न्याय का अधिकार है। जांच एजेंसियां अपने पूरे सबूत दे रही हैं। अगर मैं आपसे दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये करूं, सत्येंद्र जैन कितने महीनों से जेल में हैं? संजय सिंह कितनी देर से जेल में? मनीष सिसोदिया कितनी देर से जेल में? बाकी लोग कितनी देर से इनके लोग जेल हैं? ऐसे कई और हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में हैं, जो अखबार के नाम पे ना हजारों करोड़ की कितनी संपत्तियां इकट्ठी कर ली। ये किसे झुटलाया नहीं, सब सामने सबूत है, लेकिन समय लगेगा। अब कोर्ट, इसके ऊपर तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। लोग जितना मर्जी प्रहार हमारे न्यायालय पर करें, हम आज भी कहते हैं हमें भारत के जुडिशरी पर विश्वास है। वो सबको एक समान अवसर दे रही है, और इन सबके पास अवसर है न्यायालय जाने के लिए। किसी को बेल मिला है तो किसी को जेल मिली है। हम अपने सिस्टम पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज वो पार्टी जो 60 साल देश में राज करती रही, आज वो से एकदम से कहें इलेक्शन कमीशन चोर है, न्यायालय चोर है, फलाने को चोर, ये कैसे चल सकता है? यू कांट से ईवीएम्स आर करप्ट। एक व्यक्ति, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया कि कोई भी आए, सब लोग आए, बताइए कि ईवीएम कहां गलत है। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? केवल कीचड़ उछालो और भाग के चले जाओ, ऐसे काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले हैं, ये रोजगार ही है, ये स्वरोजगार के अवसर हैं। आज भारत बदल रहा है। जो मारिया जी ने कहा, पहले जॉब सीकर थे, आज जॉब गिवर है। बदला है जमाना। आज स्टार्टअप करने में लोग संकोच नहीं करते, बड़ी बड़ी नौकरियां। मुझे ऐसे ऐसे लोग कई बार ट्रेन में और प्लेन में मिलते हैं जो बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जिनके ऊपर शायद करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, कई अपने स्कॉलरशिप में पढ़ के आए होंगे, आज वो लाखों रुपए महीने की नौकरी को लात मार के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो क्या हम उसको रोजगार नहीं मानेंगे? क्या देश की महिला जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज लखपति दीदी, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई। हमने 2 करोड़ बनाने के लिए कहा था, 1 करोड़ को हमने बना दिया। अब ने टारगेट 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का रखा है। ये कौन रखता था? हम हैं जो टारगेट रखते भी हैं और टारगेट अचीव भी करते हैं। मोदी सरकार ने करके दिखाया। एंड कैमरामैन फोकस प्लीज। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कैमरामैन फोकस प्लीज। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है।
2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, यानी ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 2014 में क्या था? 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। 2014 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2-4 एयरपोर्ट ऐसे होंगे, आज 21 एयरपोर्ट हैं और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2014 में हम सुनते थे कि भारत की ग्रोथ डिप कर रही है, आज सुनने को मिल रहा है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भारत है। दुनिया में सुनते थे उस समय डिप कर रही इकोनॉमी है, आज ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत नजर आता है। यह फर्क है 2014 में 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सुनने को मिलते थे। आज ईमानदार सरकार के चर्चे सुनने को मिलते हैं। यही फर्क है, उस दिन सरकार गिर रही थी, आज चंद्रयान मिशन जैसी सफलता हो रही, G20 जैसे आयोजन हो रहे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो रहा है। आज योग से लेकर आयुर्वेद हम दुनिया को दे रहे हैं, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कर रहे हैं। यही अंतर है 2014 का भारत क्या था और नया भारत, युवाओं का भारत आज क्या है। That's, we could end the conversation here, but there are several more who want to ask questions. No, I want to have more questions. Oh, please go ahead. Hello sir, I'm Raghav from Modern School Barakhamba Road, studying in class 12th. My question is that after an outstanding performance in the Tokyo Olympics and with Paris Olympics on the cards, how is the government ensuring that the Indian athletes are prepared well, and what are India's key objectives, and how do you think can this particular event encourage the youth all over India? No, thank you for asking that question. And Modern School is one of the school which has beautiful playgrounds. They have a lot of emphasis on sports for last so many years, and we have seen so many cricketers to other sports person coming out of your school. Congratulations to Thank you. Congratulations for that. On social media for you, Anurag sir. The question is that the sports sector has immense potential for job creation and economic growth. How do you intend to promote entrepreneurship and employment opportunities within the sports industry, particularly for young athletes and enthusiasts? थैंक यू। मैं दोनों सवालों का एक साथ जवाब दे देता हूं। बैठिए प्लीज। अगर मैं इसको थोड़ा सा कटाक्ष करके ऐसे कहूं जैसे विपक्ष लोग होते हैं, क्या किया आपने, क्या किया खेलों में, तो मैं इतना ही कहूंगा 2014 तक मात्र 600 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, हमने 3,000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया है। 2014 से पहले टॉप स्कीम नहीं थी, हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लाए, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश विदेश में खिलाड़ियों का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भारत सरकार देती है, 50,000 रुपया महीना केवल जेब खर्च, ओवर एंड अबव बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग भारत सरकार देती है। डेवलपमेंट एथलीट को 3 लाख अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट के लिए 6,20,000 रुपया मिलता है, जो 3,000 खिलाड़ी हमने चयन किए उनके लिए। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम देश भर में चला रहे हैं, 69 साइट ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मैंने कहा था मैं 1.5 साल में 750 खेलो इंडिया सेंटर बनाऊंगा, आज मैं सिर ऊंचा करके कहता हूं 1,075 खेलो इंडिया सेंटर हमने बनाकर दे दिए हैं। हमने 480 नए कोचेस की नियुक्ति कर दी, हमने मिशन ओलंपिक सेल बना दिया। वो कहते थे कितने मेडल जीत कर लाओगे, मैं कहता हूं जितने आपने आज तक जीते थे उससे ज्यादा हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 26 मेडल जीते, जो आज तक के टोटल मेडल से ज्यादा है। पिछली बार एशियन गेम्स में मात्र 64 मेडल थे। हम क्रिकेट में तो सेंचुरी सुनते थे, मैंने कहा इस बार 100 पर एशियन गेम्स में करके दिखाओ, और हमारे खिलाड़ियों ने 107 मेडल एशियन गेम्स में जीते। फिर पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल हमने पैरा एशियन गेम्स में जीते हैं। इसके अलावा हमने कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल 61 जीते। हमारी 4 महिला बॉक्सर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी, और यही नहीं 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हमारी मैरी कॉम
हमारे यहीं से नॉर्थ ईस्ट से हैं। हमने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाने का काम शुरू किया है। एक नहीं अनेक काम हमने खेलों में किए हैं। और वो कहते हैं आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं, बस इतना सा ही किया है। इसी बात पर 4 से 5 क्वेश्चंस हम और लेंगे। आप यस प्लीज गो अहेड, इफ यू कैन पास द माइक। Good afternoon, sir. I am Pratik Jha, advocate at Supreme Court of India. My question in respect of Yuva voter. They are teenagers. Can you bring it closer to? If you can bring the mic. I am Pratik Jha, advocate at Supreme Court of India. My question in respect of Yuva voters are, they are teenager. They are mostly teenager, and by virtue of their teenage, they can be easily misled, and they do not carry much experience. And there is a possibility that they fall in trap of social media and digital media campaign and may vote for a party or a candidate which later on retracts from its own version. So in that case, a youth, a Yuva voter, a first-time voter find himself to be cheated and broken. So what is the effective recourse in such situation? As of now, I do not know any effective recourse except repenting for upcoming 5 years to wait for next election. Sir, if you come in 2024, as you have always known for raising voice against the Gaddars, so will you be doing anything in this respect where the party or a candidate turns Gaddar? Will government introduce something? Will there be any effective recourse when a party or a candidate retracts from his own version and acting oppositely as per his version? कथनी और करनी में फर्क आ जाए, तो इसके लिए क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? Thank you for the Thank you, question. sir. Please go ahead. आज के नए भारत के युवा के लिए मैं इतना ही कहूंगा, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है खुद, जमाने से हम नहीं। युवाओं को इस उम्र में आपकी आशंका ठीक है कि भ्रमित होने के बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, उनको भ्रमित करने का कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन आज का युवा बहुत जागरूक है। अगर मैं अपने समय के युवा की बात करूं और आज आपकी पीढ़ी की बात करूं, तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग टुडेज यूथ, और उसको अपने अधिकार का भी पता है। इसलिए मैंने कहा कि अपना पहला वोट देश के लिए, और वो जानता है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, देश का मान सम्मान किसने बढ़ाया है, आगे कौन करना चाहता है। मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि युवा 31 मार्च से पहले पहले अपना वोट बनवा ले। सबसे पहले तो वोट बनाना जरूरी है, वोट बना ले, और फिर वोट कास्ट करने के लिए गर्मी कितनी भी हो, तपती धूप हो या बारिश हो, लाइन में कितनी देर भी लगना पड़े, 5 साल में एक बार अवसर आता है, खोना मत। जब गरीब से लेके अमीर तक, झोंपड़ी वाले से लेके महल वाले तक, उसके वोट की ताकत एक बराबर होती है, और सरकार चुनने के लिए आपको उस ताकत को गंवाना नहीं चाहिए, अपना वोट कास्ट ही करना चाहिए, अच्छी सरकार को चुनना ही चाहिए। आप किसी को भी चुने, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए चुने, इतना मैं आपसे आग्रह करता हूं। जहां तक आपने कहा कोई गद्दार हो, ये सबके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। कोई एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं पर लागू होता है, कोई अपनी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और अगर कोई देश के खिलाफ गद्दारी करता है तो उसको भी देश के कानून के तहत सजा देने का काम होता है। Okay. Go ahead. 4 more questions. 2 from these 2 girls and then 1 more. Good afternoon, Behind sir. My that- name is Manpreet and I'm from Campus Law Center, Delhi University. So my question is related to Sports Federation, right? So as we already know the issue regarding the World Federation, which was in the national headlines. So my question is peculiar to the Sports Federation as there is no internal complaint committee. So, so even there is a mandate of the same under the POSH Act, right, which is prevention of sexual harassment. So my question is that how the government and you as a union ministers of the sports has taken any steps in this regard, and what are the other policies with regard I to think the when we talk about the field of sports, it's a very relevant question because national sport federation plays a very, very important role. Sports is a state subject. On one hand, the state government has to play a very important role. Apart than that, it is the National Sport Federation who have to do the selection process and also for the growth of the game. Well, there are many sport federations where you have a ad hoc committee. A retired judge of the Supreme Court or the High Court is sitting there for last 5 years.
That is an unwanted situation. We never wanted it, but the courts have appointed them. For example, Kabaddi, they have a retired judge already being there. There is another judo association, two other association, where they were asked to be there for 3 months, but they are here for more than 3 years, 5 years. That was the case with the football also some time back. We want the elections to be held soon for the National Sport Federation. They should have an elected body who should govern it properly. As far as the Internal Complaints Committee is concerned, it is mandatory for every National Sport Federation to have the Internal Complaint Committee. And let me assure you, every federation today have a Internal Complaint Committee. Well, if you're hinting it towards the wrestling at that time they also had an Internal Complaint Committee, but not functional that well. We had made sure that every federation have an Internal Complaints Committee. Okay, so can the mic be moved right there? Let's combine those two questions and then come in the front. Yes, please, go ahead. Good morning, sir. My name is Prajwal. I'm a software engineer who's currently pursuing law. My question to you is, now that IPL fever is on, and you've been the BCCI president before, we have an IPL ecosystem which is of 1 lakh crore, like which generates a lot of revenue to the country and also to the BCCI. How is the Ministry of Sports helping other sports other than cricket develops the same ecosystem so that other sports also create more jobs? मुझे लगता है आपका सवाल और मारिया जी के सवाल का जो मैं उत्तर नहीं दे पाया इकट्ठा दे देता हूं. इन्होंने भी उस समय कहा था कि मैं स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से कैसे ज़्यादा रोजगार और अवसर और इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है, और आपका भी उससे जुड़ा हुआ ही है. देखिए, क्रिकेट एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ तक इस स्तर तक पहुँचा है. एक समय था जब क्रिकेट में भी इतना पैसा नहीं था. 1983 वर्ल्ड कप के बाद जब कपिल देव की टीम चुनकर आई तो बीसीसीआई के पास उनको इतना पैसा नहीं था कि उनको अच्छे से सम्मानित कर सके, कैश अवार्ड्स भी दे सकें. और उस समय लेट लता मंगेशकर जी ने उस समय एक नाइट की, उससे पैसा रेज हुआ, तब उनको पैसा दिया गया. आज परिस्थितियां बदली है, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है. हम क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारे स्टार्स आज देश के जो ग्लोबल स्टार्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है. लेकिन बीसीसीआई ने उस खेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आए. बहुत अन्य फेडरेशंस ने भी उस दिशा में काम किया है, जिन्होंने अपनी लीग्स की शुरुआत की है. कबड्डी बहुत पॉपुलर लीग हुई, बीच में रेसलिंग पे शुरू हुई, बैडमिंटन पे शुरू हुई, खो खो की चल रही है. इस तरह से वॉलीबॉल की भी बीच में एक प्राइवेट संस्था ने शुरू की. कई बार कुछ समय लगता है इकोसिस्टम क्रिएट होने के लिए. जो गेम पॉपुलर होगी वो जल्दी पिक कर लेगा. जहां पे आज लोगों के पास उतना टाइम नहीं कि आप लंबा लंबा गेम देखते हो, आपको 3 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटे, इतना ही मैच देखने का आपकी रुचि रह गई है. लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह है कि आज डिजिटल मीडिया के कारण आप फोन पे भी चलते हो, ऑन द गो मैच देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप पर या अपने टैबलेट पे भी वो देख सकते हो. तो एक नई ताकत, उससे भी व्यूअरशिप उससे बढ़ गई है. जैसे एनडीटीवी की ऐप पे बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, सबसे ज्यादा शायद उस पर ही होगी. तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अवसर दे रही है. इसी तरह से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एक और तो लीग्स है, दूसरी ओर जैसे मैं सांसद खेल महाकुंभ करता हूं अपने यहाँ पे, 70,000 खिलाड़ी, 50,000 खिलाड़ी ऐसे उसमें भाग लेते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में. तो उससे लोकल जॉब्स भी क्रिएट होती है, लोकल रेवेन्यू भी जनरेट होता है. ऐसे ही मुझे देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुम बाकियों को क्यों नहीं बताते हो. तो आज बीजेपी के लगभग 350-400 सांसदों में से 250 से 300 सांसद बीजेपी के हर साल खेल महोत्सव, खेल उत्सव या खेल महाकुंभ इस नाम से वो करते हैं. तो लोकल इंडस्ट्री अपने आप जनरेट होती है. टी शर्ट्स बिकती हैं, बैट बॉल बिकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अलग अलग इक्विपमेंट बिकते हैं. जो ट्रेनर के रूप में आते हैं, कोचेस के रूप में आते हैं, कोई एम्पायर्स के रूप में, रेफरी के रूप में आते हैं, उनको आय के साधन बढ़ते हैं. तो मार्केट में पैसा आता है, जॉब क्रिएशन होती है, इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े होते हैं. अब भविष्य के लिए क्या होगा? जो प्रोफेशनल्स आपके अलग अलग कोर्सेज करके निकले हैं वो अगर अपनी छोटी छोटी स्टार्टअप्स भी बनाएंगे तो अगर आप 400-500 एमपीज, 1000 के लगभग एमएलएस को भी पकड़ लोगे तो आपकी कंपनीज के लिए बहुत सारा धंधा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. यानी कि आप उनके लिए एक प्रोफेशनल ढंग से उनका पूरा टूर्नामेंट करवा सकते हो,
उनके लिए पैसा रेज करवा सकते हो, स्पॉन्सरशिप ला सकते हो और अपने लिए भी पैसा वहां से कमा सकते हो। एक तो ये है। दूसरा, स्मॉलर लीग्स इन द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेरिका का स्पोर्ट्स सिस्टम देखोगे तो वहां वॉलीबॉल की लीग चलती है, अमेरिकन फुटबॉल की लीग चलती है, अन्य गेम्स की लीग चलती है। जो दुनिया में खेल नहीं खेले जाते होंगे वहां पे होता है। तो मुझे लगता है हर देश की अपनी एक ताकत है। मलखंब एक इतना लोकप्रिय खेल है, उसके आसपास लीग हो सकती है। हमने गटका से लेकर थांगटा, कलारीपट्टू, हमने तो अपनी ट्रेडिशनल गेम्स को भी बल देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इसको ट्रेडिशनल नहीं, हमने इसको नेशनल गेम्स का हिस्सा बनाया है और भविष्य में हम अपनी ट्रेडिशनल गेम को इंटरनेशनल गेम्स का हिस्सा बनाने वाले हैं। और आज युवा भारत के सामने मैं कहना चाहता हूं, एक और हम अपने मेडल्स की टैली को बढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक्स में, तो 2030 की यूथ ओलंपिक्स हम भारत में और 2036 की समर ओलंपिक्स भारत में कराने के लिए भारत ने कमर कस ली है। वो संभव भी हम करके दिखाएंगे। आज के भारत की वो ताकत है कि भारत रुकता नहीं है, नए आयाम स्थापित करना चाहता, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, योगा हो, आयुर्वेद हो, या फिर अब ओलंपिक्स के आयोजन की बात हो। भारत के कदम रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे। We'll take one question from, yes, two questions. Let's combine both. Yes, go ahead. Okay, so hello sir, my name is Shubhangi Rajawat and I am a 20-year-old entrepreneur, and I really appreciate the work and the efforts BJP government has put in, especially for businesses and startups. At the same time, I feel that for a 20-year-old women entrepreneur, it becomes very difficult to raise those initial funds which, you know, give that boot to my startup, because the funding system in the India is very close-knit, and once you invade that system, great enough, but for someone who does not come from a pedigree like majority of the IIMs and IITs, it becomes very difficult to raise funds. So I would be glad if you would, you know, Throw a light on that. Yeah. Sure, the minister will do that. Please go ahead. The next question and we'll combine both. Hello sir, consider me a representative of a student society, an autonomous one. So sir, यहाँ पे कब से हम युवा support की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, so I guess it would be unfair if we don't talk about the minor section of the युवा, which is the specially abled youth. Surely sir, educational institutions काफ़ी बने हैं, the numbers has risen, but the specially abled friendliness of these institutions, they are still low. So would you like to enlighten us on government's previous programs or the upcoming plans on this front? All right. So thank you so much for all the questions, sir. पहले तो महाराज जी मैं कहूँ कि स्टार्टअप फंड जो है उससे भी मदद दी जा सकती है। नीति आयोग को आप पिच कर सकते हैं। बहुत सारे और लोग स्टार्टअप जलसा से लेके आपके शार्क टैंक से लेके ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोग फंडिंग पैटर्न की ओर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास पैसा अवेलेबल भी होता है। ई कॉमर्स एक अनदर ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए। ONDC हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया डिजिटल कॉमर्स के लिए, ओपन नेटवर्क ये क्रिएट किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की आज तक परचेज बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड से हो रही है, जो MSME सेक्टर के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन बनी। जो कल तक सरकार को अपना सामान नहीं बेच पाते थे वो हो रहा है। लेकिन आपका स्पेसिफिक इस तक था कि फंडिंग पैटर्न कहाँ तक है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा था कि आपका ऑप्शंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए मार्केट अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनको ये नहीं पता इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो मुझे लगता है भविष्य के लिए वो अपने आप एक बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहाँ पे लोग इकट्ठे होके हैज फंड इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। देश के अंदर भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। आप देखोगे इसका इकोसिस्टम बहुत तेज़ी के साथ बनने वाला है। जैसे हमारे यहाँ रिसर्च के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता था, हमने नेशनल रिसर्च फंड बना दिया। अब उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध होगा इस सब करने के लिए। तो वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मुझे लगता है आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं भविष्य में खड़ी होंगी। जहाँ तक आपने स्पेशली एबल्ड की बात कही, मैं इतना कहूँगा 2014 से पहले इसको डिसेबल्ड कहते थे, अपंग कहते थे। फ़र्क इतना है कि हमने सोच भी बदली,
सुविधाएं भी बदली हैं। अब इसको डिसेबल नहीं, स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। हमने खेलो इंडिया में हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए, पैरा गेम्स के लिए बना रहे हैं। हमारे एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हम इनके यूज़ के लिए बना रहे हैं ताकि उनको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हमने शुरुआत कर दी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने इस साल वो भी किया, बहुत हिट वो हुआ। हम जितना कैश अवार्ड एबल एथलीट्स को देते हैं, उतने ही कैश अवार्ड हम अपने पैरा एथलीट्स को भी देते हैं। हम इनमें कोई भेदभाव नहीं करते। टॉप स्कीम का भी हमने अपने पैरा एथलीट्स को हिस्सा बनाया है। और जहां तक स्पेशली एबल्ड है, आज उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम ऐसे बना के दे रहे हैं जहां पे उनको स्किल्स और दी जा सके। मैं जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट और उससे पहले सेक्रेटरी था, तो मैंने उस समय ब्लाइंड के लिए, डेफ एंड डम्ब इनके लिए जो क्रिकेट खेलते थे, हमने उनके लिए भी बीसीसीआई से मदद करने की घोषणा की थी, जो आज उनको हम करोड़ों रुपए की मदद करते हैं। हमारी ब्लाइंड टीम ने एक बार नहीं, दो बार विश्व कप जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। Anuragi, thank you so much in your battle. Thank also, you. because you're contesting this time. And sir, NDTV 18 का वोट हमारा कैंपेन है, उसके लिए straight into the camera, a message. मैं सबसे पहले तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 4 बार लोकसभा का एमपी बनाया। जी। 5वीं बार मैं फिर उनके बीच में आऊंगा, आशीर्वाद पहले से ज्यादा दें। लेकिन युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, 18 का दम दिखाना है तो 18वीं लोकसभा चुनने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट बनाएं भी, डालें भी, और अपना पहला वोट देश के लिए। Thank you so much, बहुत Anurag बहुत Thakur. धन्यवाद। Pleasure speaking to you and thank you. Thank you.